گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ 75 سالوں سے لوگ ہنی مون منا رہے ہیں۔ مجھے آئے ہوئے ایک ہی ماہ ہوا ہے، عوام کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ سیف الرحمان ایڈمنسٹریٹر منتخب ہوئے، کام شروع ہو چکا، کل سے کراچی تبدیل ہوتا دکھائی دے گا۔ سیف الرحمان کامیاب ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوں گے۔ اب ہم نے مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور آپ یہ یقین رکھیے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے جو یہ مرتبہ عطا کیا ہے اس میں آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ کل ہی ہمارے ایک بہت ہی دیانتدار نیک نیت ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب کراچی کے ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوئے ہیں۔ کل رات سے ہی کام شروع ہو چکا ہے۔ اگر آج آپ جاتے ہوئے دیکھیں گے تو کم از کم شارع فیصل پہ جو آپ کو بیچ میں ایک فٹ پاتھ پہ بدنما قسم کے پودے نظر آتے تھے، کل رات سے اس کی تزئین و آرائش شروع ہو چکی ہے۔ پانی صبح سے ڈل رہا ہے اور خوبصورت قسم کے پودے لگنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ شروعات ہے کہ جب خوبصورت پودے لگیں گے انہی کی طرح خوبصورتی اس پورے شہر کراچی میں ہوگی۔ علادین پارک پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ کو ہم روزانہ تکلیف دیں گے اور آپ میرے اور ڈاکٹر صاحب کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے اور آپ تھک جائیں گے، ہم نہیں تھکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ہم انشاءاللہ گاڑی میں کھائیں گے یا کسی ڈھابے پہ کھائیں گے، کہ انشاءاللہ کل سے آپ کو کراچی تبدیل ہوتا نظر آئے گا، سندھ تبدیل ہوتا نظر آئے گا، لیکن شروعات کراچی سے ہے۔ اور ایڈمنسٹریٹر صاحب کو میں نے مکمل قسم کا یہ اختیار اور ہدایت اور پوری سندھ گورنمنٹ کی ان کو ہے کہ بلا امتیاز یہ کراچی کی جسے کہتے ہیں نا خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ایک کامیاب طور پہ کراچی میں یہ نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو بتائیں کہ شہر قاہد میں مختلف سیاسی جماعتوں نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ سربراہ تنظیم MKM پاکستان بحالی کمیٹی فاروق ستار نے کراچی اور حیدرآباد کے کارکنان کے لیے آزاد پاکستان پینل تشکیل دے دیا ہے۔ ہمارے نمائندے شعیب مختار اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی شعیب۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 15 جنوری کو کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کروانے کے احکامات جاری ہونے کے بعد کراچی کی اسٹیک ہولڈرز جماعتوں نے انتخابی عمل کی تیاریاں جو ہے تیز کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں MKM پاکستان تنظیم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار۔ ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ MKM تنظیم بحالی کمیٹی سے جڑے جو کارکنان ہیں وہ بلدیاتی انتخابات میں بطور آزاد امیدوار حصہ لیں گے، کیا حکمت عملی ہے آپ کی؟ دیکھیں، میں نے آزاد حیثیت میں گزشتہ 4.5 سالوں سے کام کیا نا، اور میرا فوکس بھی یہی ہے کہ اب ساری سیاسی جماعتوں کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے عمر کے اس حصے میں جا رہی ہے کہ جہاں ایک دن انہیں سیاست کو خیر بات کہنا پڑے گا۔ تو کیا انہوں نے یہ تیاری کی کہ یہ بلدیاتی انتخابات ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں ہم عوام کے سامنے یہ ثابت کر سکیں کہ ہم ان کے ساتھ مخلص ہیں، ہم دل میں ان کا درد رکھتے ہیں اور اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اور اب ساری سیاسی جماعتیں یا جو آزاد یا غیر جانبدار سیاسی عمل جیسا کہ تنظیم بحالی کمیٹی MKM جس کو میں 4 سال سے لے کے چل رہا ہوں، تو ہم سب پر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ ہم اپنے اگلے 10 سالوں کی قیادت کو منظر عام پر لائیں، لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور بلدیاتی انتخابات سے زیادہ اچھا موقع نہیں ہے۔ تو جب بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوا، اس کی شروع میں تاریخیں آئیں، پھر اس کو التوا میں اور تاریخ پر تاریخ، پہلے عدالتوں میں صرف تاریخیں ڈلتی تھیں کسی ملزم کے لیے، اور اب بلدیاتی الیکشن کو بھی ایک ملزم بنا کر اس کے لیے بھی تاریخیں دی گئیں۔ تو میں نے یہ کوشش کی کہ 75 کراچی سے آزاد پاکستان پینل کے نام سے 75 پینل میں نے اتارے ہیں کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے لیے، اور 30 حیدرآباد سے۔ گو کہ یہ تعداد میں تھوڑے سے کم نظر آتے، لیکن میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو میرے پینل ہیں تالے کے نشان پہ یا لیپ ٹاپ کے نشان پہ، کہیں تالا ہے کہیں لیپ ٹاپ ہے، تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ میرے پینل کو جماعت اسلامی کے، PTI کے اور TLP کے اور MKM کے یا پیپلز پارٹی کے کسی پارٹی کے پینل سے آپ ان کو کمپیئر کر لیں، ان کا مقابلہ کر لیں۔ کیا آپ بھی بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے کہ میں تو کسی پینل کا حصہ نہیں ہوں۔ جب میں نے کہہ دیا کہ بلدیاتی انتخابات تو خالصتاً
65%, 70, 75, 80% नौजवानों पर मुश्तमिल हो, तो मेरे ज़्यादातर पैनल 80-90% पैनल 35 साल से कम उम्र के नौजवानों और जवानों पर मुश्तमिल है। तो मेरा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कम उम्री में इस शहर का मेयर बनने का एजाज़ दिया। कराची के वोटर और शहरी बाशऊर हैं। वो अगर MKM एक जगह आ गई, MKM के जो हिस्से बख रहे हैं, जो तकसीम है, अगर वो ख़त्म हो गई और अगर वो सब एक हो गए, तो फिर मैं समझता हूँ कि एक मजबूत मेयर आ सकता है। वरना या जो मेरे आज़ाद पैनल को अगर कराची के वोटर, हैदराबाद के वोटर सपोर्ट करें, तो उससे उम्मीद हो सकती है। वरना तो ये सारी सियासी जमातें लड़ेंगी, एक दूसरे की टांगें खींचेंगी और ना इख्तियारात मिलेंगे, ना वसाइल मिलेंगे, ना बड़े मंसूबे आएंगे। सिर्फ मरकज़ से सूबों को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, मरकज़ से शहरों को, और कराची को मरकज़ से डायरेक्ट पैसा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक MKM पाकिस्तान तंजीम बहाली कमेटी ने जो है एक पैनल तश्कील दिया है, एक पैनल तश्कील दे दिया है। आइंदा चंद रोज़ में जो है ये अवामी राब्ता मुहिम का भी आगाज़ करेंगे। जी, कुछ महंगाई की बात करें और आपको बताएं कि शहर में सर्दियां शुरू होते ही खुश्क मेवाजात की कीमतों को पर लग गए हैं। शहरी कहते हैं कि खुश्क मेवाजात का सिर्फ सोचा ही जा सकता है, ख़रीदना तो बहुत मुश्किल हो चुका। बढ़ती महंगाई के असरात मौसम सरमा की सौगात खुश्क मेवाजात पर भी पड़ने लगे। होल सेल मार्केट जोड़िया बाज़ार में भी काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट और दीगर मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। दुकानदारों का कहना है कि चिलगोज़ा पिछले साल 5,000 का था, इस वक्त 6,800 में दस्तियाब है। नमकीन पिस्ता 2,800 से 3,200 के दरमियान फ़रोख्त हो रहा है, जबकि मूंगफली 700 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है। पहले पिस्ते थे 2,000 रुपये किलो, अभी हो गए 3,000 रुपये किलो। इसी तरह काजू पहले 1800 थे, अभी हो गए 2,800 रुपये किलो। बादाम कुछ सही है, 1,500-1,600, पहले भी वही थे, अभी भी वही है। इसके अलावा चिलगोज़ा है, वो बहुत महंगा हो गया, 6,800 रुपये किलो पड़ गया अभी, पहले ये 5,000 होते थे। शहरी कहते हैं कि 50 रुपए से कम की तो मूंगफली भी नहीं मिलती। ड्राई फ्रूट का सिर्फ सोचा ही जा सकता है, खरीदना मुश्किल हो गया है। इंसान सोचता था माजी के अंदर कि चलो थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट हम खा लेंगे सर्दियों के अंदर में, लेकिन अब सर्दियों के अंदर तो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया है। गरीब आदमी सिर्फ सोचता ही रह गया कि क्या खाएं क्या ना खाएं। 7,000 से ऊपर चिलगोज़ा चला गया है। शहरियों का कहना है कि खुश्क मेवाजात की कीमतें को देखकर ऐसा लगता है कि ये मतूस तबके के लिए नहीं बल्कि सिर्फ ख़ास अफराद के लिए है। काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं कि क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन कराची के इलेक्शन वोटिंग के मुकर्रर करदा वक्त में 45 मिनट की तौसीक के बाद गिनती का अमल जारी है। इंतखाबात में यूनाइटेड जर्नलिस्ट और आज़ाद पैनल मद्दे मुकाबिल है। दूसरी जानिब जनरल बॉडी इजलास भी जारी है। सिटी 21 के नुमाइंदे नुमान कियानी भी जीत के लिए पुर उम्मीद हैं। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? बिल्कुल जी, जनरल बॉडी इजलास भी जो है वो उसकी जो पहली नशिस्त होती है वो मुकम्मल हो गई। उसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो जो सहाफ़ी हैं उनको अपनी एसोसिएशन से उसके बारे में आगाह किया गया और वोटिंग का अमल सारे दिन गहमा गहमी रही और अपने वोटर्स को तीनों पैनल्स की जानिब से उम्मीदवार जो है वो अपनी जानिब लाते रहे। लेकिन शायद बात यह है कि बहुत ही असूली तरीके से जो है वो ये इख्तिताम पजीर हुआ। वोटिंग का आगाज़ किया गया। तकरीबन 188 वोट में से जो है वो 159 वोटर्स जो है वो कास्ट किए गए वोट को। इस वक्त हमारे साथ तो उम्मीदवार मौजूद हैं और वो एक कवि उम्मीदवार की समझे जाते हैं। यकीनी तौर पर गिनती के बाद इन्हीं का ऐलान हो, ऐसा ये समझ रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि जो रूल्स तय किए गए थे और सबसे अहम बात ये कि सबसे पहले आपकी एसोसिएशन जो है उसे रजिस्टर कराया जाए, उसके बाद जो है वो फ्रंट लाइन पर रहने वाले उनके फलाह के लिए उनके मसाइल पर जो बात की जाएगी। रेहान चिश्ती साहब मौजूद। रेहान चिश्ती साहब, क्या कहेंगे? तीसरी बार या चौथी बार आप मेरे ख्याल में कंटेस्ट कर रहे हैं, 3 बार आप जीत भी चुके हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी रिवायत है माशाल्लाह। हमारा ये आज जो है वो 5वां इलेक्शन है जो पीसफुल अंदाज के अंदर ये जमहूरी प्रोसीजर जो मुकम्मल हो गया, इसमें काउंटिंग चल रही है और गुज़िश्ता 3 सालों में मैंने हिस्सा लिया और सियारे के मेंबरान ने मुझ पर एतमाद का इज़हार भी किया है और ये बहुत अच्छी रिवायत है। असल में एसोसिएशन का जो काम होता है, जो मकसद होता है, वो अपने मेंबरान की फलाह बहबूद और अपनी तंजीम को मजबूत करना होता है। और क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन, क्राइम रिपोर्टर्स वो होते हैं जो ग्राउंड के ऊपर रह के बहुत जो है मुश्किल काम कर रहे होते हैं, मुश्किल हालात के अंदर उनको काम करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनके साथ मुश्किलात भी हो जाती हैं। कभी हमारा जो है वो जो हमारी पुलिस से भी कभी हमारे मामलात हो जाते हैं ख़राब, कभी जो है आवाम की जानिब से भी हम पे हमले कर दिए जाते हैं। तो अपने मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तंजीम ज़रूरी होती है और हमारी जो गवर्निंग बॉडी, गुज़िश्ता गवर्निंग बॉडीज़ रही हैं, उन्होंने अपने मेंबरान के लिए अच्छा काम किया। हमारा जो मेन काम जो हमारे रहेगा उसमें रजिस्ट्रेशन है। इंशाल्लाह हम मुंतखब होगा तो इस दफ़ा अपनी तंजीम को रजिस्टर्ड करवाएंगे। इसके साथ जो हमारा अकाउंट का मसला है, बैंक अकाउंट का मतलब, वो रजिस्ट्रेशन से ही
इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और इसके साथ कुछ चीज़ें कहेंगे रिजल्ट कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो अपना काउंटिंग जारी है और हम पूरे उम्मीद है कि हम जर्नलिस्ट पैनल से कंटेस्ट करें। इंशाल्लाह लोगों ने हम पे एतमाद पहले भी किया और अभी भी करेंगे, हम जीतेंगे और बेहतर काम करेंगे। बिल्कुल जी, तमाम ही पैनल के उम्मीदवार जो है वो इस बारे में जो है वो कभी इम्कान रखते हैं कि उनके उम्मीदवार जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा देखने में आया कि हर साल जब रिजल्ट आता है तो एक पैनल नहीं जीता बल्कि मखलूत हुकूमत बनती है। जो इत्तेहादी देखते हैं वो बनाने के बाद और अपोजिशन में कौन जाता है और किस तरह जनरल एसोसिएशन जो है ये क्राइम रिपोर्टर्स की इसके मसाइल को हल किया जाता है। इसलिए कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है पब्लिक के अंदर वो क्राइम रिपोर्टर होता है, इसलिए कि फ्रंट लाइन पर होता है। कोई एहतजाज हो, सियासी पार्टी की जानिब से कुछ एहतजाज किया जाए या आवाम की जानिब से अपने गिनती का अमल जारी है। जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। करप्शन एक माशरती नासूर। आलमी इंसदाद यौम बदउनवानी के मौका पर कौमी एहतसाब ब्यूरो के तहत क्लिफ्टन में निशान पाकिस्तान पाक के करीब रैली निकाली गई। DG नैब कराची जावेद अकबर रियाज की सरबराही में आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी की मुनासबत से चंकी मंकी रेस्टोरेंट से वॉक में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में मौजूद तलबा, स्काउट्स, शोबिज़ शख्सियात ने मुल्क को बदउनवानी से पाक करने के अज़्म का इजहार किया। ये पैगाम इस मीडिया और टेलीविज़न के ज़रिए पहुँचा दिया कि पाकिस्तान में अब जावेद साहब ने कह दिया है कि करप्शन नहीं, आई वॉन्ट पाकिस्तान, लव पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान से प्यार है। रैली में हैवी बाइक राइडर्स और विंटेज कारों के शौकीन अफराद शरीक हुए और नैब के इक़दामात की तारीफ की। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय DG नैब आई बिलीव, और उन्होंने जिस तरह से मुख्तलिफ हलकों को इसमें साथ मिला रहे हैं अपने, तो इससे बेहतरी ही आनी चाहिए पाकिस्तान में किसी न किसी पहलू पे, किसी न किसी अप टू सम सर्टेन लेवल। शुरका ने कहा कि मुल्क को तरक्की देनी है तो करप्शन का खात्मा नागुज़ीर है। ये होनी ज़रूरी है क्योंकि इस तरह से हमारे मुल्क जो है ना दिवालिया होने की तरफ जा रहा है, तो लिहाजा हमें हर फ़र्द का हिस्सा बनता है कि इस तरह करप्शन फ्री पाकिस्तान होना चाहिए। और ये बिल्कुल अच्छा एक अमल है और इससे लोगों को अवेयरनेस भी मिलती है, और दूसरा ये कि अच्छा इक़दाम है। शुरका का कहना था कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि बदउनवानी को हर मकाम पर रोका जाए और मुल्क में ईमानदारी को फ़रोग़ दिया जाए। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा शुमाइला न्याज़ी, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में जहां हर मौजू की किताबें मौजूद हैं, वहीं इस्लामी किताबों समेत कुरान करीम का स्टॉल भी लगाया गया है। कुतुब्बीन बड़ी तादाद में इस स्टॉल का रुख कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे हमारी नुमाइंदा इकरा अवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं 70th इंटरनेशनल बुक एक्सपो में मौजूद हूँ, जिसमें 300 से ज़ायद जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं। मगर मैं इस वक्त जिस स्टॉल पर मौजूद हूँ वहाँ पर हमारी बहुत ही मुक़द्दस किताब कुरान मजीद, डिजिटल कुरान मजीद का स्टॉल है। इसका क्या तरीक़ेकार है इस्तेमाल करने का, यह हम उन्हीं से जानते हैं। अच्छा, ये डिजिटल पेन कुरान है एहसन कलाम डेनी टेक्नोलॉजी का। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कुरान है, स्मार्ट कुरान टीचर। अच्छा, इस कुरान पाक की खासियत ये है कि इसमें 70 कुर्रा आज़ाद की तिलावत है, 12 ज़बान में तर्जुमा है, वर्ड बाय वर्ड का ऑप्शन है। अगर अपने कुर्रा आज़ाद चेंज करना चाहते हैं, इमाम सुदेस की आवाज़ में, इमाम माहिर की आवाज़ में, जितने भी सऊदिया के बड़े बड़े इमाम हैं उनकी आवाज़ है, फिर मिस्र के कुछ कुर्रा हज़रात हैं। इसी तरह फिर तर्जुमा है उर्दू, फ़ारसी, पश्तो, सिंधी, पंजाबी में। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इसमें हम कुरान मजीद के अलावा जो हमारी मसनून दुआएं होती हैं, इस्लामी हमारी जो स्टोरीज़ हैं, वो भी हम इसके ज़रिए सुन सकते हैं या नहीं? नहीं, इसके अंदर जो चीज़ इसके साथ आ रही है, इसके साथ जो मतलब पूरा कंप्लीट सेट आएगा, उसमें अंबिया के क़िस्से भी हैं, बच्चों की मसनून दुआएं भी हैं, कुछ मुख्तसर मसनून दुआएं भी हैं, अज़कार वगैरह हैं। जी, तो आपने देखा कि डिजिटल कुरान पाक जो है ये बहुत ना सिर्फ ये मखसूस लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, बल्कि ये हर उम्र के बुज़ुर्ग हजरात, बच्चे और तमाम लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हम लोग कुरान पाक के अल्फाज हुर्फ ब हुर्फ जो है हम कुरान पाक भी पढ़ सकते हैं। हम कुरान पाक का तर्जुमा उर्दू, पंजाबी और पश्तो में भी सुन सकते हैं। और उसके अलावा मसनून दुआएँ भी बच्चों के लिए रखी गई हैं, ताकि बच्चे जो है दुनियावी तालीमात के साथ साथ जो है जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है हमारी इस्लामी चीज़ों में भी जो है अपना जो बच्चों का जो रुझान है वो बढ़े। जी, एक्सपो सेंटर में 17वें आदमी कुतुब मेले का आज तीसरा रोज़। मेले में तलबा को साइंस की इल्मी सरगर्मियाँ सिखाने के लिए खिलौनों का इस्तेमाल किया गया। तफसीलात बता रहेंगी हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत।
بالکل جی، ایکسپو سینٹر کراچی میں سجایا گیا 5 روزہ یہ عالمی کتب میلہ، جس میں مختلف اسٹالز لگائے گئے ہیں، لیکن خاص کر یہاں پہ جو اسٹالز جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں وہ بچوں کے لگائے گئے اسٹالز ہیں، جہاں پہ کتابیں تو بہت سارے مضامین کی یہاں پہ ہیں، لیکن جو عملی طور پر جو کام سکھانے کا عمل ہے وہ میں اس وقت جو موجود ہوں جس اسٹال پہ، یہ خاص کر بچوں کے لیے لگایا گیا ہے، جہاں پہ بچوں کو سائنسی کریکولم جو نصاب میں ہوتا ہے اس کو عملی طور پر کرنے کا طریقہ کار سکھایا گیا ہے، وہ بھی کھلونوں کے ذریعے۔ میرے ساتھ اس میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بناتے ہیں اور بچوں کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جی سر بتائیے گا کس طرح سے آپ نے اس کو ڈیزائن کیا اور بچے کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں اور کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ پاکستان میں سائنس کو پریکٹیکلی پڑھانے کے لیے، کریکولم کو پریکٹیکلی سکھانے کے لیے ہم نے اس طرح کے پروجیکٹس بنائے تاکہ بچے ایک فن وے میں کھیلتے ہوئے چیزوں کو سیکھ سکیں۔ اب جو بھی ایک فارمولا 1 کار ہے، ڈفرینٹ اس میں بریجز ہیں، اس میں ڈفرینٹ بورڈز بن جاتی ہیں، تو اس کو بناتے ہوئے پاکستان کا جو نیشنل کریکولم ہے سائنس کا وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی اس کا جو مینول ہے وہ اسی طرح سے ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ بچہ جو ہے سائنس کو ایک پریکٹیکل انداز میں پڑھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر رٹافیکیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اور کانسیپچول نالج بڑھانے کے لیے اس طرح کی کٹ موجود ہے، یہ جس کے سائنس کے کانسیپٹ بھی سیکھ رہے ہیں، سرکٹ بھی سیکھ رہے ہیں اور وہ چیز بچہ بلڈ بھی کر رہا ہے۔ بالکل، بچوں کے لیے جو عملی طور پر کام کرنا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان کھلونوں کے ذریعے وہ اور اپنی عملی طور پر جو ہے وہ سائنس کو جان بھی سکیں گے اور سیکھ بھی سکیں گے۔ جی، اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر اور اس کے اپڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہیے City 21۔